So very good evening to all of you. We are in continuation with the chapter number 10, that is microbes in production of biogas. Or actually the name of chapter is microbes in human welfare. So who is going to give me the briefing के क्या क्या हम अब तक पढ़ चुके इस chapter में? We studied a lot in our last lecture. So I request one person to give me one point. Can we start from Siddhanto nahi because he was absent. Can we start with Nakshatra? क्या पढ़े हम last week Nakshatra? Any specific example? Do not give me broad ideas. Because you were supposed to prepare the list, so it should be in your fingertips. Mishka, can you? Without seeing. Very easy. Very good. Very good. Name of the microbe. I will ask him only. No? Mishka, if you can go. So it is responsible. So if you are writing, तो याद नहीं हो जाता है. मतलब कॉपी करने के लिए सिर्फ कॉपी कर रहे थे, ध्यान कहाँ था, है ना? चलो, कौशा, your example. Aspergillus niger, very good. It's a fungus. And use of Aspergillus niger. Citric acid, correct. Aspergillus can be for citric acid. Acetobacter acetic can be for acetic acid. Vinegar. Aspergillus can also be used for production of acetic acid too. Okay, bolo. Penicillium from Penicillium notatum. Penicillin from Penicillium notatum. Yes. Very good. Thousand examples we studied. Very good. स्ट्रेप्टोकोकस इडली और डोसा में बिल्कुल नहीं होता है. श्यामा? हाँ. So what is the name of enzyme secreted by streptococcus? Streptokinase. Anything else? Cyclosporine. We completely studied the process of sewage digestion. वो क्या समझे? Who is going to describe me the process of sewage treatment? बोल. ये जो कंटेनर्स है इनके नाम हमें बोलने पड़े. So sewage digestion is something I told you people to read specifically. I showed you very specific and good flow chart. So try and understand this chapter. From this chapter, many times questions like what are flocks? Flocks contain which type of organisms? So these are the questions which you should be able to answer. Remember one thing, even if you are not appearing for NEET, you will have to appear for good sake, for better prospects.
एंड गुड सेट में 12th के सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स डिलीट होंगे. ओके, so some people have clear idea, some people have very vague idea. I didn't ask you, beta, can you give me any example of microbes in human welfare? Cyclosporine, how it is used. We talked about use of bacterial enzymes in enzymatic wash. The problem what you people face is after the class is over, you never revise. And that is the way you are increasing your burden. You need to plan your studies. एक चीज समझो, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, कल सुबह तक ये आपके दिमाग में रहेगा. रहते रहते आप रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में पक्का होने के चांसेस है. 2 दिन बाद पढ़ोगे मतलब आप वापस से जीरो में खड़े हो, अब आप पढ़ रहे हो. आपको चॉइस क्या है वो आपको सोचो. एंड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज. आप स्कूल में बोलते हो ट्यूशन के होमवर्क है, ट्यूशन में बोलते हो स्कूल का, कोई नहीं चलेगा. And Nakshatra, special request to you, you have excellent memory power. Work on yourself, you can score really well. है ना? चलो, हम अब प्रवचन बहुत हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे. Today's topic of discussion, that is microbes in production of biogas. पहले इसको गोबर गैस बोला जाता था और इंडिया में ये काफी पहले से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है इन विलेज एरियाज. Nowadays, in city areas also, they are taking advantage of this. I visited one society in Pune many years ago. It was in the year 2007 or 8. It was known as Montworth. That society had all biological resources for energy production. Solar panel, biogas, they had rainwater harvesting system. So these are the things which are very less costly. जितने में हम पीओपी की एक फॉल्स सीलिंग बनाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उतने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन सकता है. ओके, बायोगैस प्लांट एक सोसाइटी में बन सकता है, बट ओनली थिंग इज वी डोंट पे अटेंशन. So what is a biogas plant? We will first understand that and then we will see how it can be useful. हम ये जो मोदी जी को दोष देते रहते हैं ना, गैस की प्राइस बढ़ गई है, दोष देना बंद कर सकते हैं if we have biogas plant. So what is biogas? It's a mixture of gases. Many gases are there to make biogas. Out of which the most important inflammable gas is methane. Okay. Now, who produce biogas? It is produced by methanogen. As it was taught to you in grade 11, so I must say, methanogens are type of archaebacteria. So what are archaebacteria? They are primitive bacteria and they are thought to be live in extreme condition. पहले के जमाने में लोग जब गाड़ी और ये सब अवेलेबल नहीं था, लोग दूर दूर जाते थे चल के. सुबह चलना स्टार्ट करते थे, शाम होते ही देखते थे कहीं आग है कि नहीं, मतलब वहाँ ह्यूमन है. उसके घर जाके अगर बोलते कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे थोड़ा दोगे, तो उस टाइम पे लोग बड़े दिल वाले होते थे. दे कुड हैव सेड कि चलो हम 10 जन का खाना बना रहे हैं, 11वां बना दो, तुम घर के बाहर बरामदे में सो जाओ, अगले दिन चले जाओ. So this was a very common practice. होटल वाला सिस्टम नहीं. तो लोग जब ट्रैवल करते थे, कई लोग ये मिथेनोजेंस की वजह से मर जाते और लोग सोचते थे कि प्रेतात्मा, क्योंकि स्वैम्पी एरियाज जो होता है, स्वैम्प मतलब पता है आपको, जो डीप एरियाज है, बहुत डीप नहीं, वहां पे बारिश की पानी जम जाती है, वहां जो वेजिटेशन है दे स्टार्ट गेटिंग रॉट. तो उसकी वजह से ये मिथेनोजेंस के लिए वो स्वर्ग होता है.
and they used to produce what? मीथेन गैस। उससे क्या होता था? अब ये जो मीथेन गैस है, अगर कहीं आग लग जाए उसमें by some kind of friction or something, it will move as if it is a light. लोगों को लगता था वहां कोई है, वो लोग उसमें चले जाते थे। and swamp is an area which is full of mud and water, so they sink in that and die. और लोग बोलते थे कि एक चुड़ैल है, लेके जाके दबोच के मार डाल। so this was the situation. Microscopic chudels, that is called methanogen. So I told you this story so that you never forget that they are archaebacteria. Now, cellulosic material like plant, they grow. They produce lots of methane gas because in biogas maximum amount is of methane. But apart from that, there will be CO2 and H2 also. It is also present in rumen of cattle. They are generally anaerobic bacteria. So rumen is a closed part. Can anyone tell me what is rumen? It is a large part of large intestine of some animal like cow, buffalo. That's why they are called ruminant. That's why they are very comfortable to eat grass. We should not try because we don't digest cellulose. है ना? लोग बोलते हैं गाय खा सकता है तो मैं क्यों कच्चा खा के नहीं जी सकता? भाई उसके पास रुमेन है, वो उसमें खाना रख देता है, दूसरा बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके उसको देता है। You don't have such facility. Do not come. Okay. So what is the purpose of having biogas? It can be used for cooking. In village areas where people use other resources for cooking, like they collect the twigs of plants, they use hay for cooking, और गाय का जो गोबर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा बायोगैस क्यों यूज कर? चल तो रहा है अच्छा, वो सब जो फ्यूल है उससे भी चली जाता ना, क्योंकि खाना तो बन ही जाती है। बायोगैस प्लांट वो लोग क्यों बने? व्हाट इज द बेनिफिट? उनको करनी नहीं है, चूल्हे जल तो रहे हैं गाय के उपले से। वो नेचुरल गैस यूज ही नहीं करते, गाय का गोबर लेके दीवारों पे डिजाइन बनाते, उसको उतार के चूल्हे में लगा के दे यूज। He said the correct thing, but terminology गड़बड़ था. It's called calorific value. Every fuel is having a calorific value. Calorific value says what? If you are burning 1 gram of that fuel, how much energy you will get? So first of all, the calorific value of other fuels like twig or गोबर, उसको क्या बोलते हो? I don't know in Gujarat. हाँ? नहीं रे, काउ डंग तो मुझे भी पता है, वो जो काउ डंग केक, गोबर को ऐसे, हाँ, तो उसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू है उससे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ये यूज करना आसान है, लाइट करो जलने लगेगा, उसमें आपको चूल्हा जलाना पड़ता है, विच इज अ जॉब। हैव यू एवर ट्राइड? यू शुड ट्राई एंड देन यू विल रिमेम्बर कि जिसने गैस की आविष्कार की थी, गैस लाइन के बारे में सोचा था, वो कितना महान इंसान था, उसको आप थैंक यू दोगे। 15 से 20 मिनट लगता है, उसमें आप खास के मतलब से खत्म हो जाओगे, क्योंकि बहुत धुआं भी होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, एंड वो उसमें से हम दूसरी यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज दैट गैस, दोज फ्यूल ओनली फॉर कुकिंग। इसमें आप इसको यूज करके दिस बायोगैस कैन बी यूज टू convert it into electricity, and with that you can light the lamp and all. Okay, तो इसको पहले गोबर गैस भी बोला जाता था। क्यों? गोबर से बनता है। बट कैसा एक बायोगैस प्लांट होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट।
I guess the screen is visible to all of you. Okay. So first of all, it has a tongue called dung and water. So this is the outlet of gas. Let us start from like one side. So this dung and water is added into this feeder tank. So this specific tank is called okay. Now in this feeder tank, whatever your waste can be added, not necessary only cow dung. Biogas can be very much produced from domestic waste like sabzi ka chilka and all. Only thing is, if you want to use them efficiently, you need to macerate them. उनको आपको पीस लेना पड़ेगा so that surface area can be more and फटाफट it can be produced. So in such cases, you have to have a additional tank where you are going to macerate them and then transfer them into the feeder tank. Now feeder tank में ये जो dung and water है, it will go where? It will go here in the digester. Why it is called digester? Digestion करता है bacteria. Whatever organic material present there will be digested by the bacteria, fungus, whatever it is. Generally methanogen. Now, after digestion, the raw material will be present here and the gas will be light in weight. So, this is the dome, which is the outlet. Okay. So, gas will evaporate from here to here, and gas will come out of this specific place. Now, generally, the gas that is coming out of bioreactor gas plant is having a very bad smell. That was one concern. कि मतलब खाना बनाते वक्त ऐसा स्मेल किसको लेगी? So nowadays filters are available which can trap the smelly gases, and you can get the biogas which doesn't have that much smell. बाकी थोड़ी smell gas की हमेशा होनी चाहिए because it will help you to detect that if it is leaking or not. Now this tank is called sludge tank. अब क्या होता है बेटा? The medium which is utilized by microbes are light in weight, and the new medium which is not still utilized is heavy in weight. So, as through feeder tank, you are continuously feeding the medium into this digester. The new medium will be present at the bottom, and the old medium will come up. कहाँ से? ऊपर से. अब देखो, you can see there is one outlet to remove spent slurry. Can you see? So through this outlet, the spent slurry will come here in this sludge. समझ में आया कि क्यों आएगा? Because used medium is lightweight. तो जैसे ही यहाँ से हेवी चीज आएगी तो ओके, छोटी सी एक्सपेरिमेंट करना है तो घर पे कर देना. पानी के ग्लास में 1 चम्मच हनी डाल देना, देखना हनी नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा. Level will increase. Same. So now this slurry can be used for the purpose of fertilizer. Okay, so that is how biogas is produced. IARI, Khadi and Village Industries Commission, developed this biogas production technology in India. It's not very costly. It is very economical and it can be used very efficiently. कुछ करना नहीं पड़ता है. It is done by natural means. So बायोगैस को कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते होंगे? हमने बोला ना उससे स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल दिस कैन बी लाइट. हाउ गैस और पेट्रोलियम हमारे देश में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है? मेजॉरिटी हाँ
So how in thermal power plant electricity is produced? Turbine. So turbine घुमा के सही, but you have to say by which means, because turbine हाइडल पावर में भी घूमता है, हर जगह घूमता है, हाइड्रोलिक में भी तो टरबाइन ही घूमता है ना. So you have to convert it into electrical energy by using a turbine, dynamo and a steam production part. So that is how we can use it as an electricity source also. And you will not believe the cost of making a biogas plant, something around 20,000 rupees, and it doesn't require any maintenance. So if you consider there is a society where people are there, like mere giving 1,000 rupees or 2,000 rupees, you can reap benefit of it. Okay. So now we will talk about the next very important part, that is microbes as biocontrol agent. Okay. So अच्छा एक बात बताओ, हमने क्यों ऐसा बायोगैस का सोचा? नॉर्मल गैस तो मिलता ही है ना, एलपीजी. गैस एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो गैस नॉन लिविंग है बेटा, वो एक्सटिंक्ट नहीं होता. So that's why we need to search about the alternative source of energy. और हम में से कोई सोचता नहीं है, हम अभी भी फैन लाइट चालू करके चले जाते हैं. Remember, in India 70 to 75% power is produced by thermal power. ठीक है, और अभी ज्यादा से ज्यादा 10 साल कोयला बचा है, फिर क्या करेंगे? बट हम दूर का सोच नहीं सकते. तो बोलेंगे सब, मार्च तक सोच नहीं पा रहे ना, 10 साल बाद क्या करेंगे सोचने के लिए बोल रहे. जोक. So next approach is having a different approach, that is microbes as biocontrol agent. So biocontrol agent means what? In India, approximately 30 to 40% crops are getting destroyed just because of pests. Now these pests can be anything. What are the pests? सात कांड रामायण पढ़ के सीता राम की भौजाई जी थी, भाभी थी राम की. अरे भगवान, जो फंगस और बैक्टीरियल डिजीज पड़े हो, दे आर नॉट पेस्ट. इंसेक्ट्स सारे जो होते हैं, दे आर ओनली पेस्ट. Anything which is causing affecting production of agricultural crop is called pest. It may be a virus, it may be a fungus. अगर टोबैको मोजाइक वायरस है, वो पेस्ट नहीं है, बेचारा इंसेक्ट नहीं. इतनी इग्नोरेंस, हॉरिबल. प्रियांशी, आर यू देयर विथ मी? सर दर्द तो नहीं दे रहा है? हम आज 5 मिनट प्रियांशी की सरदर्द लेके बात करें, है ना? रीजन, इफेक्ट एंड कंट्रोल. तो biocontrol agents are very important. Why? Because beta, for biocontrol agent, Mishka, anything special you are doing your phone? नहीं ना? So they are helping us in lot many things. First of all, एक additional खर्चा farmers को करना पड़ता है, जिससे वो जहर लेता है. Mostly farmers are not that much educated about how to handle pesticides. नॉर्मल पेस्टिसाइड्स जैसे इंसेक्ट्स या पेस्ट के लिए जहरीले होते, दे आर बैड फॉर फार्मर्स आल्सो. व्हाइल स्प्रेइंग, देयर इज बायोमैग्निफिकेशन इन ईच लेयर ऑफ इकोसिस्टम. यू नो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? पढ़े होंगे आप छोटे ग्रेड में. क्या होता है? कभी गजनी गजनी गजनी. अरे भाई समझो, तुमने
10% लॉ होता है इकोलॉजी में, याद है तुमको? क्या होता है वो? वो दवाई का जाता है। जैसे कि वो जो खाती फिर उसको जैसे कि कोई दूसरे को खाता है जैसे गाय, तो उसमें भी वो बकरी के जो फर्टिलाइजर का 10%, फूड की नहीं एनर्जी की 10% जाती है, फर्टिलाइजर पे आके खड़ा है बच्चा। फर्टिलाइजर कौन खाता है? प्लांट्स खाते हैं फर्टिलाइजर। व्हाट इज फर्टिलाइजर, कृषांक? बट आई अप्रिशिएट वन थिंग ऑफ कृषांक, he never is afraid of मैं क्या बोलूंगा उसका क्या हो। तुम सभी हंस रहे हो, he is trying, you people are not, so very good। हम बोले तो मिसकंसेप्शन जाए ना बेटा, अब तुम बोलते नहीं तो तुम जिंदगी में फर्टिलाइजर हम खाते हैं ऐसा सोचते। You should always speak, everyone can make mistake, no problem। फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड्स, आपने दोनों आंसर्स को जोड़ दिए। 10% लॉस इज के 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाता है। बायोमैग्निफिकेशन में ऐसा बोला जाता है कि जैसे समझो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, प्लांट को जितना पेस्टिसाइड रहेगा वो प्लांट से जो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा उसमें पेस्टिसाइड का अमाउंट उससे ज्यादा, सेकेंडरी कंज्यूमर में और ज्यादा, थर्ड टर्शियरी में और ज्यादा। तो ये पेस्टिसाइड्स अब सब जगह चले गए। इवन द फूड वी आर ईटिंग बाय बाइंग फ्रॉम मार्केट, वी आर ईटिंग पेस्टिसाइड्स। हमारी सभी के बॉडी में पेस्टिसाइड्स अवेलेबल है, एंड सम पेस्टिसाइड्स आर देयर जो डिग्रेड ही नहीं होते, ठीक है। और हम कोई रूल्स नहीं मानते। एक्चुअली देयर आर पेस्टिसाइड डिटेक्शन लैब जो ये बताते हैं कि आप अगर आलू की खेती कर रहे हो तो आपको कितने दिनों में हार्वेस्ट करनी है और कितने दिनों बाद वो खाना सेफ है, क्योंकि एक टाइम के बाद पेस्टिसाइड चला जाता है, डिग्रेड होता है, बट हम उतना वेट नहीं करते। कौन आलू को रख देगा, हमें अभी खाने, फिर हो गया समझ लो। इसके अलावा हर लेवल तक ये जो जहर है ये फैलता है। व्हाट इज द लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट? जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, देखो लेडी बर्ड है, आई विल गेट बैक देयर, दिस इज कॉल्ड लेडी बर्ड। ये जो रेड कलर का बर्ड है, बग, लेडी बर्ड है। अरे बस उसको नाम लेडी बर्ड है, वो है बग। अरे बिटल भी बोलते हैं उसे, ठीक है। ये क्या करता है, ये एफिड्स को खाता है। एफिड मतलब ऐसे छोटे छोटे जो लार्वा होता है, आई टॉट यू लार्वा लास्ट टाइम, है ना, तो उसको वो खा ले तो बेटर है। अब तुम तो उसको देख के खाने वाले हो नहीं, उसके रहने से उसकी भी भला तुम्हारी भी भला, अंडरस्टूड? देन हाँ, हार्म भी नहीं होता। देन ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल मॉस्किटोज, तो मॉस्किटोज को खाएगा, हमें कोई टेंशन उसका नहीं है। मॉस्किटोज, अब यहाँ पे मुझे बोलना है कि पेस्टिसाइड यूज की जाती है टू किल मॉस्किटोज। आप देखना अहमदाबाद म्यूनिसिपलिटी भी छिड़काती रहती है। दिस इज डीडीटी, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट पेस्टिसाइड जो पूरी दुनिया में बैन हो गई है, हम अभी भी यूज करे जा रहे हैं। हाँ, और हम सब उसमें मस्त घूमते हैं। हाँ, मच्छर ना काटे, डेंगू ना हो। वही बोला ना मैंने, हमें हमारी एक खास बात है, पता है, हम ज्यादा दूर का नहीं सोचते। अभी चलेगा ना, बस बस आगे जाके देखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी, ये सारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इसकी बहुत खराब इफेक्ट होता है। यू कैन सी दिस डिफॉर्म्ड चाइल्ड,
It is a result of this kind of pesticides only. If in pregnancy a lady is getting too much exposed with the pesticide, ठीक है, तो पहले के जमाने में बोला जाता था मार्केट से सब्जी लाके उसको बॉईल करके खाना अच्छा है, उस पानी को फेंको मत, यू यूज इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ समथिंग. अब बोला जाता है फेंक दो भाई, भले गुण जाए जाए, बट इट यू शुड नॉट कंज्यूम द पेस्टिसाइड. तो जैसे बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, हम वापस से बायोटेक चैप्टर में भी पढ़ेंगे. इट्स अ बैक्टीरिया जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी. ठीक है, ये जो आप मस्त येलो कलर का लार्वा देख रहे हो, दिस बिलोंग्स टू अ फैमिली कॉल्ड लेपिडोप्टेरा फैमिली. लेपिडोप्टेरा फैमिली. अब ये एक इंसेक्ट की लार्वा है जिसको बहुत ज्यादा कॉटन प्लांट का लीफ पसंद है. ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम मुझे क्या फर्क पड़ता, कॉटन प्लांट की लीफ खाए, मुझे तो लीफ से थोड़ा ही ना लेना देना, मुझे तो कॉटन चाहिए, है ना. बट लीफ ही नहीं होगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा. ड्यू टू दैट रीजन इन इंडिया लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर गेटिंग वेस्टेड. तो साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से इसकी सोल्यूशन सोची. कैसे? आई एम गोइंग टू टेल इट वेरी क्रिस्प एंड फाइनली as it is in recording. Kindly listen to me here, and in recording also see. So what happens is there is a gene called cry gene. रो, कोई रो मत. Name is cry, but it's not responsible for crying. It will be responsible for production of Bt toxin. What is the role of this toxin? They actually are enterotoxin. Enterotoxin means they create holes in the gut of these Lepidoptera larva. उसकी पूरी जो गट है उनकी तो इतनी वेल डेवलप नहीं रहती, बट दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके उसमें होल्स कर देते हैं, जिसकी वजह से यू कैन अंडरस्टैंड क्या होगा. अब इसको यूज करने का फायदा क्या है? इन्होंने क्या किया, ये जो बीटी है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, इसको यूज करने के दो तरीके. एक, in they prepared suspension of Bt, that is Bacillus thuringiensis bacteria. They mixed it with some amount of gum and some amount of ink. Ink is giving it protection against sunlight, and gum is making it longer in that. Dry हो जाएगा तो bacteria मर जाए. And sprayed it in the trees. So if these larvae are eating them, they will die. But science didn't stop there. इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो बीटी है यानी बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसकी एक लाइफ है, उसके बाद वो बैक्टीरिया जिंदा, तो फिर आप डाल रहे हो उसका 100% यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा, बार बार स्प्रे करनी पड़ेगी, इतना झमेला किसको लेनी है. So what they did, they took that, cut that cry-gene and put it into the cotton. अब कॉटन ही बीटी टॉक्सिन बना सकता है. अब खाओ लार्वा. The moment they are taking a few bites of the leaf, they will die by themselves. So keep your patience up. After completion of this unit, we will go for ecology, and last we will study with the biotechnology chapter, where you will have a very low, but you will have idea about how these things are done. Okay, so BT cotton is an effort of Mahiko Industries India. They prepared it, and this was successful. Apart from that, trichoderma, which is a fungus, they are present in the root of plant. For example, I will talk about rhizobium also.
You heard about diazobia, nitrogen fixation. They hate competition. So they don't allow any other microbes to come near them. है ना? जैसे I told you, E. coli is our protected. वो विटामिन B12 तो सिस्टम सिंथेसिस करता ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट allowing the harmful bacteria to grow. इसीलिए बोलते हैं probiotic drink पियो. What are probiotic drink? They are nothing but suspension of these bacteria only. आप बैक्टीरिया खा रहे हो probiotic drink. Good bacteria. जो छाछ में मिलता है पता नहीं चल रहा है कि तू प्रोबायोटिक ड्रिंक से पी रहे हैं. इफेक्टिव. हाँ, प्रोबायोटिक कब किसी को देनी है? इफ अ पर्सन इज हैविंग एक्यूट स्टमक इन्फेक्शन, तब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दूध को दही को पचा के उसमें से ले. तो यू आर गिविंग इट डायरेक्ट. फॉर अ हेल्दी पर्सन टेकिंग अ ग्लास फुल ऑफ छाछ इज इनफ एज अ सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक. So apart from that, I wish to talk about baculoviruses. It's a genus called nuclear polyhedrovirus, NPV. Nuclear polyhedrovirus. This is the shape of this virus. They are like very helpful in integrated pest management program. How? They kill lot many types of insects. Same, you need to make suspension in case of virus, तो you don't have to even worry कि वो मर जाएगा. बाहर तो वो मरा हुआ ही है. जैसे ही इंसेक्ट उसको खाएगा, it will be living. तो वही किया जाता है. इनएक्ट मतलब जो वायरस है, you make suspension of it with some amount of gum and ink, and then it is sprayed in the plants as an insecticide. Okay. So नेक्स्ट पार्ट इज माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर. तो इनको यूज करने से क्या फायदा? पॉल्यूशन कम होगा. जो यूज कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा. लॉन्ग टर्म यूज में वी आर प्रिजर्विंग द गुड बैक्टीरिया, गुड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया. आज के जमाने में खेतों में चूहा मिलना, अर्थवर्म मिलना बंद हो चुका है due to the amount of pesticides we are using. ठीक है. और इससे हमें छुटकारा मिल सकती है because they are specific. If you are using microbes, जैसे कि अगर आप ड्रैगन फ्लाई को यूज कर रहे हो तो वो मॉस्किटोज को ही खाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करने वाला. ठीक है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर. ओके. तो फर्टिलाइजर्स का क्या यूज होता है? व्हाट इज मैन्योर? आई विश टू हियर फ्रॉम यू. फर्टिलाइज करता है. फर्टिलाइज वर्ड आई गेट टू नो. When you are upgrading your grades and you are writing that I passed 10th grade, 12th grade, while using words you should be very cautious. बात वही है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप, बट फर्टिलाइज नहीं करता है. दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. तो क्या, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हो रहा है ना. फर्टिलाइजर्स अच्छी चीजें होती है कि नहीं होती है? What do you know about fertilizers? Tell me. How many of you have farmhouses? घर पे खेती है, ऐसा कुछ है? None of you. क्या? अरे घर पे मतलब फैमिली. तो वो बोले फर्टिलाइजर क्या होते हैं? क्वालिटी अगर इंक्रीज करता तो दुखी क्या?
So it is increasing the nutrient content of the soil. So हम क्यों डालते हैं उसको soil में? So that we get better yield. ठीक है? So what is the difference between manure and fertilizer? जैसे फ्री भी होता है तो डोमेस्टिक ही निकल रहा है, फिर भी हम फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? मोर इफेक्टिव शब्द बहुत किस टर्म पे मोर? इट विल गिव यू क्विक रिजल्ट. बहुत साल पहले मेरे पास एक लड़की गाना गाने सीखने आई, किसी ने भेजा था, मैं विशारद हूँ जी. तो शी टोल्ड मी कि मैम मैं गाना तो बहुत अच्छा गा लेती हूँ, पार्टीज में गाती भी हूँ, बस सुर नहीं लगता. तो मैंने पहले उसको देखा, तो आप मुझे फटाफट 1 महीने में गाना सिखा दो, अभी दिवाली नवरात्रि में मुझे गाना है. मैंने उसको बोला कि बेटा ये इंस्टेंट नूडल नहीं है, तो मैं तुझको 1 महीने में गाना सिखा दूं. सेम इज एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल विथ manures and fertilizers. Fertilizers are having broken down or simple components, so they are giving you instant result. And in manures you need to give it some time because microbes will work on them, it will be broken, and then it can give you result. Understood? We don't have time. But is it bad to use fertilizer? अच्छा है ना, फटाफट रिजल्ट दे रहा है, क्यों? मतलब वाई? इसकी लॉन्ग टर्म वो लैंड की फर्टिलिटी को किल करता है, फिर वो लैंड जो होगा वो बंजर हो जाएगा. And you need to then add that manure and do ups and downs with the soil to get back the fertility. So that's why biofertilizers are suggested by everyone that you should use them. So biofertilizers मतलब क्या? वही microbes can be used for fertility, increasing fertility of soil. So what you can do, यहाँ राइजोबियम के बारे में बताया गया. दिस कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. स्टडीड इन लोअर ग्रेड. व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? पहले मतलब वो जो नाइट्रोजन ग्रो किया जाता है, उसके बाद आप दूसरे प्लांट ग्रो करो वापस से लेग्यूम्स. इससे क्या होगा? नाइट्रोजन बैलेंस. अब मुझे लेग्यूम्स ग्रो ही नहीं करनी, तो तब प्रॉब्लम है ना. तब मैं बायोफर्टिलाइजर यूज कैसे करूं? तो ऑब्वियसली देयर आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया like azospirillum, azotobacter and even cyanobacter. You know nostoc is an excellent nitrogen fixer. इनकी सस्पेंशन या सोल्यूशन बना के मीडियम के साथ आप सॉइल में स्प्रे करो, so that your soil can be enriched in nitrogen. So you don't have to wait. इसमें तो ऐसा हो गया कि मर्जी ना हो ना हो, मुझे लेग्यूम ग्रो ही करते, which is not always feasible. अब वर्क इसमें भी चल रहा है. देयर इज अ जीन विच फिक्स नाइट्रोजन विच इज कॉल्ड निप जीन. NIF. निफ जीन. ये निफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइजोबियम के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं. लेट इट बी इन द पार्ट ऑफ इकोलाई. इकोलाई विल फिक्स नाइट्रोजन पर. Understood? So this is the way it is thought, but still we are tackling up with azotobacter and azospirillum. It was observed that it gives excellent result, but ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचता नहीं है. Apart from that, another biofertilizer is mycorrhiza. Rhizobium, azotobacter, azospirillum, all of them are bacteria.
Nostoc is a cyanobacterium, blue green algae जिसे बोलते हैं. Mycorrhiza is a fungus. It's also known as avascular mycorrhiza क्योंकि डबल इफेक्ट करता है. एक तो ये क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस. कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन ही सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं जिसकी प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है उसमें सबसे फेमस जो है दैट इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो फॉस्फोरस के लिए क्या करेंगे हम? So this fungus can solubilize phosphorus, sulfur. सल्फर सॉइल में है, प्लांट लेना. तुम कच्चा आटा खा सकते हो क्या? रोटी बना के देनी पड़ती है ना. तो सॉइल में जिस फॉर्म में सल्फर रहता है प्लांट कैन नॉट टेक इट, है ना. तो उसको क्या करनी पड़ती है, उसको उसके फॉर्म में देना पड़ता है. दैट फंक्शन इज डन बाय दिस माइक्रोब्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ये किसी रूट बोर्न पैथोजन से देता ही है प्रोटेक्शन, और इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट टू maximize the absorption. So with this we are done with the chapter. Now I wish all of you to have a look into the exercise and ask me if you have any doubt.